कि भाई साई क्या है, साई वेव फंक्शन है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। चलो, नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप लोगों को पूरा मॉडल 4 मेन क्वांटम नंबर्स पे डिफाइन किया जाता है, राइट? द फर्स्ट क्वांटम नंबर व्हाट यू हैव इज n, which is known as the number of shell, है ना? Correct. Then you have the next quantum number as L, which is known as the azimuthal quantum number, right? The next quantum number is M, which is the magnetic quantum number, and the next quantum number is S, which is the spin quantum number. Correct. N will give you the total number of shells, right? वो शेल का नंबर रिप्रेजेंट करती है। अब ऑफ कोर्स है शेल का नंबर 0 हो नहीं सकता, सो n कैन नेवर बी इक्वल टू 0, वो आपको याद रखना है ना? n कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन, करेक्ट? उसके बाद अगर हमारे पास n ये आ गया, उसके बाद what we'll get L. L is nothing but the azimuthal quantum number. The value of L is nothing but, anyone can tell me the value of L? कोई बता सकता है the value of L? शिखर, do you have any idea the value of L क्या होता है बेटा? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होते हैं। What is the value of L? हाँ जी, n-1. yes, it is still n-1. मतलब यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा for this? It will be 0. For here 2 है, तो 2 till 1, right? So this is 1 and 2. For 3 it will be 1, 2, 3. For 4 it will be 1, 2, 3 and 4 and so on. Now over here these numbers are being represented by a specific orbitals, जिसको हम लोग बोलते हैं subshells। क्या बोलते हैं? subshells। तो जैसे ही हम लोगों के पास यहाँ पे 0 होता है, सो ये हो जाता है हमारा s सबशेल। अब ऐसा नहीं है कि सेकेंड शेल के पास 0 शेल नहीं है, उसके पास 0 भी है, राइट? सो ओवर हियर, सॉरी दिस जस्ट वन मिस्टेक बाय मी, मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 के बदले 0 से शुरू करना था। सो इट्स 0 and 1, 0 1 and 2, 0 1 2 and 3। सो जहां पे भी आपको 0 दिखाई देता है वो आपका क्या बन जाता है? इट इज द S सबशेल। जहां पे भी आपको 1 दिखाई देता है वो आपका P सबशेल, जहां पे भी 2 वो बन जाता है D, और जहां पे भी 3 वो बन जाता है F। So this way you get S, P, D and F the subshells. To avoid the confusions, what we do over here is we give the specific number to that. S तो बहुत सारे हैं, 1 में भी ऐसा है, 2 में भी ऐसा है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 1S। ये हो जाता है 2S 2P, ये हो जाता है 3S 3P 3D, ये हो जाता है 4S 4P 4D and 4F. Now from here we can also come to know that the n, which is the principal quantum number, it always is equal to the number of subshells. आपके number of subshells n ही होंगे। आप देखो यहाँ पे n1 है तो आपके पास एक सबशेल है, यहाँ पे n2 है तो आपके पास 2 सबशेल है, 3 है तो 3 सबशेल है, 4 है तो यहाँ पे आपके पास 4 सबशेल है। Clear? Till here am I clear all of you? Please give a thumbs up till here if I am clear. Sure है? Now over here you get magnetic quantum number. अब magnetic quantum number क्या बताएंगे? Manav, can you unmute yourself and keep your camera on please beta? Manav, are you there? Hello Manav, is this your first Hello, class? sir. Beta, Yes, is this sir. your first class? Okay. So Manav, from next time onwards what you do is, आप है ना अपने नाम के आगे ब्रैकेट में, आपने सबने देखा होगा, देखो सबका नाम देखोगे ना तो ब्रैकेट में आगे ADV लिखा हुआ है,
ठीक है? यस सर। आप आपने एडवांस बैच ज्वाइन किया ना, तो आप जब भी क्लास में आओगे ना, तो अटेंडेंस के लिए आप ब्रैकेट में एडी लिख के आओगे, ठीक है? यस सर। ओके मानव? श्योर सर। Great. So please, if Manav has kept the camera on, please I'll request all of you to keep the camera on. So this way I can see your faces and I can come to know that whether what I'm speaking, you can at least understand it or not. कि फिर ऊपर से ही जा रहा है, वैसा होगा तो नहीं. You have already done this in your advance also, but still. Now comes the magnetic quantum number. Its values are from minus L to through 0 to plus L, right? वो माइनस एल से 0 से लेके प्लस एल तक वैल्यूज लेती है, और हमें n बताता क्या है? It actually gives me the number of orbitals. What it gives me? The number of orbitals, right? So over here, यहाँ पे हमारे पास of course 0 है, तो मेरे पास ये 0 का यहाँ पे 0 ही हो जाएगा. There is nothing else I can do, है ना? Over here I have 0 and 1, तो 0 का 0 होगा, बट 1 के लिए मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी? -1, 0, +1, right? It's not L, my bad. +1. यहाँ पे 0, 1, 2, तो 0 का 0 होगा, 1 का -1, 0, +1, और 2 के लिए क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 and +2, and so on and on. This way, my orbitals also got some of the names. Over here, the orbital 0 was represented by one bus. Over here, something like this. The orbital which has the subshell 2p was represented by a bus which had 3 windows like this. फिर 3s के लिए फिर से 1 window, ये 3p के लिए 3 window. But now for 3d, I had 5 values, so I had 5 compartments over here. And similarly for f, मेरे पास कितने आ जाएंगे? How many I'll have? I'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, because this 3 will have the magnetic quantum number form -3, -2, -1, 0, +1, +2 to +3. Clear all of you? समझ में आ रहा है? इधर तक everything is clear? All of you got it? From here, we can also come to know that there are n square amount of orbitals. What are n square number of orbitals? देखो यहाँ पे, अगर n मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n नंबर ऑफ सबशेल्स आएगा, और उन सबशेल्स में n स्क्वायर नंबर के क्या हो जाएंगे मेरे पास? ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ओवर हियर, इन सब को भरने के लिए, to make them filled up with the electrons, we have two main things. So the electronic configuration what we study actually is being divided into two main rules. The first one is the Aufbau principle, and the second one is the Hund's rule. What is it? The Hund's rule. Over here, when we talk about the Aufbau principle, it is the building up principle, right? It is the building up principle. Now, in this building up principle, it states that the lower energy orbital will get filled first, right? वो जो हमारी लोअर एनर्जी होगी ऑर्बिटल की, वो पहले फिलअप होगी. It will get filled up first. And over here, to support Aufbau rule, there was another rule which came into picture, which was Bohr-Bari rule. क्या था? Bohr-Bari rule. ये Bohr-Bari rule को हम n plus L rule भी लिखते हैं. What is this rule known as? N plus L rule also. इसका सिंपल उदाहरण ये है, if we have 4s and 3d, right? 4 is nothing but your principal quantum number. S will represent your azimuthal quantum number L. ये n और ये L. अब आपको पता है कि 4s के लिए क्या होगा? n is 4, s is 0, so answer is 4. 3d के लिए क्या होगा? 3 plus d के लिए L का वैल्यू होता है 2, so यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.
So clearly you can see that 3D has a greater n plus l value than 4s. So technically speaking, of Bow principle के हिसाब से तो lower energy पहले fill up होनी चाहिए. तो my 4s orbital will get filled up first than 3D because it is having lower energy. Correct all of you? Till here everyone is clear? यहाँ तक सब लोगों को clear हो चुका है? Am I clear all of you? Please by the show of hands tell me if you have understood or not, beta. Shikhar, Aryan, Arpan, is it clear? Okay, great. Now let us move on to the next one. अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं तो अब हमने उसका फिलअप प्रिंसिपल करना है. मतलब we have to consider the Hund's rule. Before going to the Hund's rule, let me give you one simple trick to remember the Aufbau series. आपको Aufbau series remember करने के लिए एक simple trick बताता हूँ. Suppose we have 4 subshells S, P, D and F. Correct? तो इस S, P, D, F को हमको कैसे लिखना है पता है? We need to write SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS. कैसे आया? देखो, मैंने पहले S को लिया, उसको 2 बार लिख दिया. फिर SP को लिया, उसको उल्टा करके 2 बार लिख दिया. फिर SPD को लिया, उसको उल्टा करके 2 बार लिख दिया. फिर पूरा SPDF लिया, उसको 1 बार उल्टा करके लिख दिया. समझ में आया ऑल ऑफ यू? आपको पता चला कैसे सीरीज बनानी है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? श्योर है? ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब क्या करोगे? यहाँ पे जहां से S शुरू हो रहा है वहां पे स्टार्ट राइटिंग द नंबर्स. जैसे कि आपका S यहाँ से शुरू हो रहा है, सो यू स्टार्ट राइटिंग द नंबर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. करेक्ट? अब जहां से भी आपका P शुरू हो रहा है, अगर आप ऊपर देखो तो आपका P सेकेंड नंबर से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो वहां से 2 से नंबरिंग शुरू करो. सो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. फिर आपके पास D आया, तो D कहां से शुरू होता है? D starts from the number third shell. So what I will do over here? D मुझे पहले दिखा 3D, 4D एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5D. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट F, तो 4F से शुरू होता है, तो 4F. This will ensure you the increasing order of the energy levels. 1s being the least energy and 7s being the most energy वाला. ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है. आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ी रूल अपने आप एडजस्ट हो जाता है. देखो 4s 3D से पहले आ गया. समझ में आया ऑल ऑफ यू? गेटिंग इट? Similar thing can happen between 3P 4S also. अगर आप बहुत बड़ी रूल 3P 4S में लगाते हैं, over here you have 3P and 4S. So 3 plus P का नंबर होता है 1, यहाँ पे 4 plus S का नंबर होता है 0. So दोनों का एनर्जी इक्वल है, बट यहाँ पे 4 is the next shell, इसीलिए उसको हायर एनर्जी बोल देते हैं और 3P को लोअर एनर्जी. And that is why 3P gets filled up first than 4S. All of you understood till here? सबको समझ में आया है? How this Aufbau building principle has come? सबको पता चला है? मानव, अर्पण, आर्यन, is it clear? पक्का है? Shall I move ahead? All of you have understood till here? Now let me go on to the building up, the Hund's rule. अब बारी आती है Hund's rule की. Hund's rule of maximum multiplicity ये कहता है that we cannot have pairing, no pairing takes place in the orbital until each orbital is
half filled first. मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर आप कभी भी पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते हो जब तक सारी ऑर्बिटल्स इंडिविजुअली एक बार फिलअप ना हो जाए. For example, let me take example of oxygen. Can anyone tell me what will be the atomic number for oxygen? कोई atomic number of oxygen बता सकता है? अर्पण, आप बता सकते हो? अर्पण, can you tell us? Yes, मानव, आप बताइए. Sorry, you got mute. Sir, 16. Atomic number of oxygen. मानव, atomic number. Sir, 8. Yes, exactly. It is 8. Okay. ठीक है मानव, समझ में आया? Okay. Now इसको भरना कैसे है? See, I'll not show the pairing first. I'll just show the common electronic configuration first. ठीक है? See, आपको कैसे लिखना है? SS, PS, PS, DPS इतना लिख दो. फिर क्या करो यहाँ पे? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s. फिर क्या करो? 2p, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4p और यहाँ पे 3d. क्लियर? चलो, एक ऑर्बिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू हंस रूल देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर मैं यहाँ पे 1s, 2s, 2p और 3s ऐसा लिखूं तो 1s, 2s, my this orbital will get filled और फिर ही इसके अंदर पैरिंग होगा. फर्स्ट my this orbital will fill और फिर ही इसके अंदर पैरिंग होगा. फिर यहाँ पे 2p. From my 8 electrons, 4 electrons are already filled. So now there will be next 4 electron. So over here 1, 2, 3 and now the pairing will start. That is the 4th electron over here. All of you understood this? समझ में आया है? सबको पता चला है कैसे करना है? All of you understood the Hund's principle? Did you get it? How to write it? So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? 1s2, 2s2, 2p4. This is the electronic configuration of oxygen atom. Is it clear all of you? सबको क्लियर है? मानव, अनिकेत, शिखर, is it clear? Okay, great. Now let me move on to this one. मैंने यहाँ पे आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो वो कैसे अरेंज किए हैं? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ. Now this is nothing but our 4th quantum number which I was talking about, that is S. That is your spin quantum number. This spin quantum number actually gives us the spin of electron in an atom. वो spin of electron बताता है. We represent this positive bar for clockwise spin and we represent this downside arrow for anti-clockwise spin. Right? Now clockwise और anti-clockwise आ जाते हैं तो हम उसको यहाँ से pairing बताना शुरू करते हैं as we have shown in this oxygen atom. Clear all of you? Getting it? पता चला है सब लोगों को? आप सबको ये pairing कैसे करना है वो पता चला है? All of you have got it? And then we have one more principle which is a companion to Hund's rule, which is Pauli's exclusion principle. This Pauli's exclusion principle is many a times asked in examination, so I would tell you to please note it down. Note down the Pauli's exclusion principle, all of you. The Pauli's exclusion principle states that no two electrons can have in the same atom, actually in the same atom can have same value of all 4 quantum numbers.
ठीक है, इज दिस क्लियर? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया है? ये प्रिंसिपल बहुत बार आता है एग्जाम में लिखने के लिए। ये क्यू नंबर्स मतलब क्वांटम नंबर्स, लेट मी राइट इट फॉर यू ऑल ओवर हियर, 4 quantum numbers. So this is the principle. Now here इस principle को ये भी लिख सकते हैं, direct implication ऐसा भी लिख सकते हैं इस principle का, it is not possible to accommodate more than 2 electrons in an orbital. आप एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। ग्रेटर देन 2 कैन नॉट बी पॉसिबल, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख के बता दिया था, राइट? क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर? समझ में आया है? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? Okay, so you wouldn't mind me giving some of the electronic configurations for some elements, right? चलो शुरू करते हैं electronic configurations. Number 1, for which atom, let us say, will go for scandium. Scandium is 21. Who's going to give me the electronic configuration for scandium? कौन बताएगा? Aniket, will you be able to help us? Yes, sir. बताइए। Sir, general or that S1? बेटा जनरल नहीं, S1 वाला ही अभी 1s1 1s2 ऐसा जो भी हो। Wait, sir, tell. It would be 1s, 2p. Yes. Oh, sorry, 1s के 2s, बाद 1s, 2s, 2p, देखो 3s. व्हाट आई सजेस्ट इज अनिकेत, पहले वो मैंने जो बताया था ना आपको, वो SS PS PS DPS इतना लिख दो, तो क्या आपको आसानी रह जाएगी। अब क्या करो, यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s, फिर P के आगे 2p 3p 4p और D के आगे 3, बराबर। अब फिलअप करना शुरू करो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। 1s में कितने जाएंगे? 2. 2। 2s में कितने जाएंगे? 2. 2p में कितने जाएंगे? 6. ओके। 3s में? 2. ओके। 3p में? 6. 4s में? I think it was 10. 10 or 4s 14. बेटा, 4s Oh, sorry, बेटा, 2, 2, 2. yes. and 3d 10. काउंट कर लो, काउंट कर लो। 2 + 2 4 + 6 हो गए, 10 हो गए, 10 और यहाँ पे हो गए, तो 10 के ऊपर 1. हाँ, मतलब 3D में कितने जाएंगे? सिर्फ 1। सो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? इसका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको पता हो तो 1s2 से लेके ये 3p6 तक अगर मैं देखूं, तो it will give me a general electronic configuration of a noble gas, which is nothing but, anyone who can tell me? बता सकते हो अनिकेत आप कौन सा नोबल गैस होगा? एनीवन? यस शिखर बताइए, कैसा कौन सा नोबल गैस होगा ये? आर्गन। वेरी गुड, आर्गन। सो स्कैंडियम 21 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4s2 3d1. Clear? Getting it all of you? Now suppose if I want to write scandium +2, तो मैं कैसे लिखूंगा? How will I write the electronic configuration over here? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? स्कैंडियम +2, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल गए। मानव, एनी आइडिया कैसे लिखेंगे इसको? मानव? Sir, 1 minute. Yeah, sure, take your time beta. No, sir, I don't have any idea. No idea?
देखो इतना तो पता है ना मानव, +2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल गए वो कहाँ से निकालने होते हैं, हम 3D में से निकालेंगे कि 4s में से निकालेंगे? सो द आंसर वुड बी हम 4s में से निकालेंगे। Why 4s? बिकॉज वो 3D के बाद वाला इलेक्ट्रॉन है, इट्स द वैलेंस शेल, राइट? सो व्हाट विल हैपन, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3D1। क्लियर है मानव? आई होप दिस मच इज क्लियर। सबको समझ में आया है हाउ टू राइट दिस? सबको क्लियर हुआ है ये? मानव, शिखर, especially you two, is it clear? Great. Let us go on to the next one. एक और लिखते हैं जो आप लोगों को कर सकते हो. I feel you can go for iron, Fe. Fe का atomic number होता है 26. Who's gonna tell me? Fe. iron का कौन बता पाएगा? अर्पण, आप ट्राई करेंगे? सर 1s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरूं सब में? सर 2 1s2 2 2s 2p 6 2 6 2 6 नहीं 6 नहीं होंगे वहाँ, हाँ 6 6 ही होंगे बेटा, करेक्ट है, गुड, ग्रेट। सो टिल हियर ये आर्गन हो जाएगा, तो इसको हम Ar4s2 3d6 भी लिख सकते हैं, करेक्ट और नॉट, है ना? नाउ ओवर हियर सपोज हमारे पास वी हैव Fe+2। कौन बताएगा Fe+2 कैसे लिखेंगे? चलो Fe+3 कर देते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। Fe+3 कौन बताएगा? यस शिखर, बताइए आप कैसे लिखेंगे Fe+3? सर इसमें से 2 चले जाएंगे और डी में से 1 जाएगा, तो 3d5 बचेगा। वेरी गुड, मतलब आर्गन 3d5, परफेक्ट, ग्रेट, गुड, थैंक यू शिखर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई, वांट टू गो फॉर वन थिंग? कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई बता सकता है 18? चलो एक मैं दूं, ब्रोमीन 35, who will go for it? ब्रोमीन 35, आर्यन गो फॉर इट, बताइए कैसे लिखेंगे? So, 1s2 2s2 2p6 एक मिनट बेटा, मेरे को इतना जल्दी नहीं आता। 1s2 2s2 2p6 3s2 ओके 3p6 3p6 अच्छा 17 होता है ना, हाँ 3p 10 12 5 3p6 बराबर ही था आर्यन, आई वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज तो यू। ब्रोमीन 35 होता है। हाँ बेटा, ब्रोमीन 35 ही है, मैंने लिखा भी है, देख। 3p6 4s2 3d10 वेरी गुड, 20 30 4p 5 करेक्ट, बराबर है ना? क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? गुड गुड वर्क आर्यन। श्योर है एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? कैसा आया, पता चला है? क्लियर है इधर तक? If it is clear, the chapter is over. I'll have to now move on to do a question answers form. Clear है? चल एक दो चीजें हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सी फॉर p ऑर्बिटल के पास हमारे पास क्या है? वी हैव थ्री ऑर्बिटल जैसा p सब शेल के लिए, ठीक है? सो दैट इज px py एंड pz। ये सारी जो ऑर्बिटल्स हैं उन सारों की एनर्जी इक्वल होती है,
energy of px will be equal to energy of py equal to energy of pz. इसीलिए इनको एक शब्द बोला जाता है. कोई बता सकता है कौन से ऑर्बिटल्स बोला जाता है इनको? कैन एनीवन टेल मी? अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम हो, उन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है? एनीवन कोई बता पाएगा? अनिकेत, कैन यू टेल मी बेटा, क्या बोलते हैं उसको? नो सर. याद नहीं है? नो सर. नहीं आर्यन, यू ऑलरेडी नो. कितना आंसर देंगे? आयुषी को सॉरी अनुष्का को पता है तो वो दे सकती है. हाँ, स्ट्रिक्टली अनुष्का कैन स्पीक. हाँ अनुष्का बोलो. Degenerate orbitals. करेक्ट, यस, डीजनरेट ऑर्बिटल्स. क्या बोल सकते हैं इनको? डीजनरेट ऑर्बिटल्स. परफेक्ट, वेरी गुड. चलो, वैसे ही कोई मुझे डी ऑर्बिटल के, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के नाम बता सकता है? कोई मुझे डी ऑर्बिटल्स के नाम बता सकता है? शिखर, बता सकते हो आप? So not sure, but I can try. Yeah, definitely go for it. Okay, so XY dxy and XZ, X square minus Y square, and dxy के बाद आएगा dyz, dxz, फिर dx square minus y square और लास्ट इज dz square. ओके, ठीक है. इन सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कैसे होती है? इक्वल. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. व्हाट आर दे नोन एज? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. गुड ट्राई शिखर, वेरी गुड. एक और चीज आपको बता देता हूँ, पर छोड़िए, कोई बात नहीं, वो हम लोग 12th में ही करेंगे, अभी के लिए रहने देता है. Then comes two of the exceptions in the electronic configurations. एक होता है क्रोमियम और एक होता है कॉपर. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. इन दोनों में एक्सेप्शन आता है. कोई वो एक्सेप्शन बता सकता है अगर आपने पढ़ा हो तो? कैन यू टेल मी द एक्सेप्शंस? अर्पण, आप बता सकते हैं? नहीं पता मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम अर्पण, कोई बात नहीं. चल अर्पण, कोई बात नहीं, अनिकेत को पूछता है. यस अनिकेत, बताइए बेटा. सर इसमें 4s 3D के बाद आता है. बाद में नहीं आता, वो बाद में फिलअप होता है. यस, और बट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताइए पहले मुझे अनिकेत. वो आप करेक्ट हो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम या Cu? क्रोमियम का बताइए. 1s2, 2s2, 2p6, ओके 3s2, ओके. 3p4, 3p4, yeah, 3p में भी 6 ही 3p, आता है ना. ओके 3p6, अब बताइए. 3d5, ये हो जाएगा 4s1 3d5. करेक्ट. और ये कॉपर का भी बता दीजिए अनिकेत. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1s2, ओके 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 और 4s1. 3d10. करेक्ट, वेरी गुड. और अब ये होता क्यों है अनिकेत ऐसा? Why this is there? What is the reason? रीजन याद नहीं है सर, मेरे को सर ने बताया था इसके एक्सेप्शंस. राइट, करेक्ट. तो रीजन शिखर को पता है, शिखर को पूछ लेते हैं. यस शिखर, बताइए. सर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं. हाफ फिल एंड completely filled, दोनों. वेरी गुड शिखर. Half filled Completely and filled. completely filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. All of you reason याद रहेगा?
ये रीजन बहुत बार आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में, प्लीज इसको याद रखने का। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पे देखो 3D5, 3D में हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। टोटल ऑक्यूपाई हो सकते थे 10, पर है कितने? 5। तो ये हाफ फिल्ड हो गया। अब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कंप्लीटली फिल्ड, सॉरी पार्शियली फिल्ड की ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से ज्यादा हो जाती है। वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। एंड वाई ये स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके दो कारण होते हैं। द स्टेबिलिटी इज हायर, किसकी स्टेबिलिटी इज हायर? हाफ फिल्ड, सॉरी माय बैड अगेन, half filled and completely filled orbitals की stability is higher, orbital stability is higher because there are two reason to it। ये भी आपको याद रखना है, प्लीज इसको याद रख लेंगे। फर्स्ट वन इज symmetrical arrangements of electrons। What is the reason? Symmetrical arrangements of electrons, ये पहला रीजन होता है। और दूसरा रीजन ये होता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है रीजन? एक्सचेंज एनर्जी। ये वर्ड्स पर्टिकुलरली आने चाहिए। अब ये एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पे क्रोमियम का एग्जांपल ले रहा हूँ 24 Ar4s, और यहाँ पे है हमारा 3D। अगर मैं यहाँ पे 4s2 3D4 भरता हूँ, तो ये 4s और 3D की एनर्जीज बहुत करीब करीब हो जाती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी है ना, वो तब तक करीब हो जाती है तब जब तक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होके यहाँ पे ना आ जाए। मतलब 4s2 3D4 के बदले वो क्या हो जाएगा? 4s1 3D5। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है ऐसी, और उसको हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी एक्सचेंज की वजह से भी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी हायर हो जाती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस मच क्लियर? सबको समझ में आ गया है? हैव यू नोटेड द रीजन ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट द रीजन है, ये गिव रीजन आता है एग्जाम में। ये एक्सेप्शन क्रोमियम एंड कॉपर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो इट्स क्लीशे, आपको क्लीशे लग रहा होगा, बट स्कूल एग्जाम में आता ही है। इज दैट क्लियर? अर्पण, मानव, आई होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू। अर्पण एंड मानव, please by the show of hands tell me if it's clear. Okay, great. I hope till here everything is done. यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? तो can I start with the questions? Questions शुरू करें? Okay, चलो, let us begin. So, sorry for the delay. Let us begin with the question. Question number 1. I'll be taking strictly end exercise questions only because that is only been very much extensive. तो मैं वही questions यहाँ पे लूँगा, ठीक है? चलो, let us begin. If n equals to 4, what are values of m and l? कौन बताएगा मुझे? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या आएंगी? व्हाट इट वुड बी? कौन बताएगा? मानव, आप बता पाएंगे बेटा? मानव, आर यू देयर?
अरे he left the meeting over. Okay, कोई बात नहीं. अर्पण, are you there? अर्पण यस सर। बताइए बेटा, n इक्वल टू 4 है तो m और l की वैल्यूज क्या हो सकती है? सर n4 पे l की वैल्यू n पे n1 पे तो 0 होती है। बहुत सिंपल होता है अर्पण. मैं एक बार ट्राई करके दिखाऊं आपको? shall I give it you a try? यस सर। देखो n इक्वल टू 4 है. m की वैल्यूज बेटा कहाँ से कहाँ तक होती है और l की वैल्यूज होती है 0 to n-1. ओके, और यस m की सर। वैल्यूज होती है -l to प्लस +l. ओके, अब यस आप मुझे बताएंगे l और m की वैल्यूज. सर l की 3 0 1 1 2 2 और 3 3. बराबर, करेक्ट. यस और सर। m की वैल्यूज क्या होगी? l की -3 to 3 बेटा देखो, हर एक के लिए होगी. 0 का 0 होगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा? -1 -1 0 +1. फिर 2 के लिए -2 +2 -2 -2 +3 1. -3 yes, you can write it like that also. आप ऐसे भी लिख सकते हो. And just write it down what as you said, +or-2 तक और +or-3 तक. 3 बराबर, क्लियर? यस सर। चलो, ग्रेट, गुड अटेम्प्ट. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. Electron is present in 4p. Write values of n, l, m and s. इन चारों क्वांटम नंबर्स की आपको वैल्यूज लिखनी है अगर इलेक्ट्रॉन 4p में है. कौन बताएगा? Who will tell us? कौन बता पाएगा? यस आर्य, बताइए. सर हाँ हाँ सर अनुष्का बोल. सर n4 होगा, n4 होगा. l होगा 0 1 2 3 4। अगर 4p है अनुष्का, तो p के लिए l क्या होता है बेटा? वो पर्टिकुलर 1 l 1 मुझे. 1 हाँ 1. फिर m क्या होगा? m होगा -1 0 और 1 +1 +1. और s क्या हो सकता है? हाफ +½ या तो -½ करेक्ट, गुड, ग्रेट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. कैसे आया ये 4p इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, वो पता चला? क्लियर है? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. अगर you have to write the designate the orbitals. ऐसा क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट वन, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1. कौन सा ऑर्बिटल है ये? कौन बताएगा? अनिकेत, कौन सा ऑर्बिटल है ये? n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1. So 3p. वेरी गुड, इट इज 3p. परफेक्ट. सेकेंड, n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 3. कौन बताएगा? शिखर बताइए, कौन सा ऑर्बिटल होगा ये? सर 5f. This will be 5f. Correct. Good. Let us go for the third one. n equal to 3, l equal to 2. मानव, आप ट्राई करेंगे बेटा? You were disconnected in the meeting earlier. मानव, are you there बेटा? Yes, sir, yes. I'm there. हाँ जी बेटा, आप ट्राई करेंगे? ये कैसे आएगा? What will be the orbital?
Yes, sir. 1 minute. I'll just... Yeah, sure. Take your time, beta. Three D. Very good. Perfect, beta. Correct है. 3D. Good. Nice try. Okay. So I hope all of you understood कैसे आएगा. Sure. Let's go for the next question. You need to write out the electronic configuration of sodium. Write electronic configuration EC for sodium and give all set of quantum numbers for highest energy electron. हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सारे क्वांटम नंबर्स लिखने हैं. चलो, कौन बताएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम? अर्पण ट्राई करें बेटा. सर 1s2 1s2 2s2 2s2 3p6 3p6 3s1. वेरी गुड. 2s2 के बाद सीधा 3p कैसे आ गया अर्पण? सर 2p6 होगा 2p6. इसीलिए बोलता हूँ बेटा, वो जो मैंने आपको बताया था ना वो निमोनिक, मतलब अभी आपको एक शॉर्टकट नहीं बताया, वो शॉर्टकट से करोगे ना. हाँ, ये मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, कोई बात नहीं. 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. तो इधर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा बेटा? हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एनीवन? अरे अर्पण को क्वेश्चन पूछा, अर्पण गया. क्या हो रहा है? यस शिखर बताइए आप. 1 मिनट. यस शिखर बताइए आप. सर n+l वैल्यू 2p और 3s दोनों का इक्वल है, तो 3s को कंसीडर करेंगे. वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा. सो इट इज 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला है. इलेक्ट्रॉन इन 3s इज ऑफ हायर एनर्जी. करेक्ट. और अब अगर ये हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या मुझे और आर्यन बता सकता है कि व्हाट विल बी इट्स सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स? n, m, l और s सारी वैल्यूज बताइए. सर n3 होगा, l0 होगा, m1 होगा. l0 होगा. m S क्या होगा? m1 होगा. m1 होगा. श्योर हो? यस सर. बेटा l0 है तो m0 ही होगा ना, हाँ. क्योंकि m की वैल्यूज तो -l0 to +l होती है. समझ में आया? राइट? यस सर. यस ओके. एंड देन s की वैल्यूज क्या होगी? प्लस हाफ. प्लस और माइनस आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ इसको प्लस और माइनस करना. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझ में आया है? यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ यस अनिकेत पूछिए बेटा. सर एक बार सर हाई एनर्जी कैसे पता करते हैं वो बता दो सर. श्योर. देखो, ये जो मेरे लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना अनिकेत, देखो 2p और 3s है ना. अब Yes. उसमें बॉहर बरी लगाओ. 2p में और 3s में अगर मैंने बॉहर बरी लगाया तो n2 है और p क्या होता है? 1. तो इसकी वैल्यू Yes, sir. 3 आ गई. फिर 3s में ये 3 है और s की यहाँ पे क्या आ गई? 0. तो ये हो गया 3. दोनों की एनर्जी लेवल कैसी आई? इक्वल. पर 3s हायर नंबर ऑफ शेल है, मतलब इसकी एनर्जी लेवल हायर होगी कंपेयर टू 2p. समझ में आया बेटा? यस सर. तो मतलब 3s में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी वाला होगा. ठीक है? यस सर. ओके. और आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. मानव बेटा समझ में आया है? आर्यन अनुष्का क्लियर है?
राइट? शिखर ने तो जवाब ही दिया, तो शिखर का तो क्लियर ही होना चाहिए। ग्रेट, चलो, सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज डन, करेक्ट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। I guess Arpan is still facing the connectivity issues. I guess this is pretty much it in structure of atom. आप अब बताइए अपनी तरफ से, आपको कोई टॉपिक में डाउट वाउट है? Is this much clear to all of you? अनिकेत, आपको कोई अब और टॉपिक में डाउट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से? No, sir. Because this was pretty it. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। Now what I will suppose is कि आप होमवर्क शीट सॉल्व करना शुरू कीजिए, और अगर आपको होमवर्क शीट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, because pretty much आपको obvious है कि you have the advanced work also, but you can directly attempt the test, बराबर ना? Correct? Yes, sir. हाँ जी, ओके। अर्पण का एक चैट मैसेज में रिक्वेस्ट आया है हाइजेनबर्ग समझाने के लिए, राइट अर्पण? तो लेट्स गो फॉर हाइजेनबर्ग। देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी क्या बोलता है? इट सेज दैट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स पे लागू होता है? माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट्स या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हम कौन सा क्वांटिटी रेफर करते हैं यहाँ पे? मोमेंटम। तो एक पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते एक्यूरेटली। With accuracy and precision, you cannot find momentum and position simultaneously. इसीलिए या तो पोजीशन अगर आप एक्यूरेटली फाइंड करोगे तो मोमेंटम में कुछ गड़बड़ आएगी, मतलब कुछ एरर आएगा, और अगर मोमेंटम अच्छे से फाइंड कर लोगे तो पोजीशन फाइंड करने में कुछ गड़बड़ आएगा। वो एरर किससे आएगा? वो उसने फिक्स कर लिया, वो एरर उसने फिक्स किया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आएगा, और वो अमाउंट हमारा क्या था? इफ यू रिमेम्बर, किसी को पता है वो अमाउंट हमारा क्या था? एनीवन? आर्यन, आप बता सकते हो कितने अमाउंट डिफरेंस से वो एरर आएगा? h by 4 pi. Correct. So the entire uncertainty equation will go delta x into delta p would be greater than equal to h upon 4 pi. Clear all of you? समझ में आया? Getting it? अर्पण, आई होप आपको क्लियर है। यस अर्पण, पूछिए बेटा। सर वो 4 पाई m होगा ना? कहाँ से बेटा? ओके, मैंने डेल्टा पी लिया है यहाँ पे, आप यस यहाँ पे सर, डेल्टा v एम पी आएगा तो यहाँ पे m आ हाँ जाएगा। करेक्ट। तो Yes, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अगर आप लोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा। बट नेवरदलेस अपनी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन दिया है, तो ये वाला ज्यादा याद रखने में आपकी भलाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JEE पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस मच क्लियर? श्योर है? एनीथिंग एल्स यू ऑल हैव डाउट अबाउट? कोई और डाउट है? Aryan, from your side, any doubts, beta? No, sir. No, sir. Okay, great. Aniket, from your side, any doubt, beta? No, sir. Great. Okay. Arpan, from your side, any doubt, beta? no sir. Okay. I know Shikhar and Manav, this is your first class, but Shikhar, do you want me to discuss anything in particular from second chapter? नो सर, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क, बोर्ड वाला थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Bohr का Postulates. क्या theory, beta? Which theory you're talking about? Are the postulates you're talking about? हाँ। Bohr's postulates. Yes. Postulates आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, स्पेशली द सेकंड पोस्टुलेट। वो जो बोहर का सेकंड Okay. पोस्टुलेट है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? ठीक है? ओके Okay, sir. या
So Manav, I know this is your first lecture. Yes, But sir. do you want me to repeat anything from the second chapter, beta? Board point No, of view? sir. Sure, Sir, beta. actually, this is my first class, but I have learned this chapter from YouTube, so I know all the points and all. I'm clear about this chapter. Okay, great then. That's great. Manav and Shikhar, I wanted to know, are you in the position to give the test next week? इसकी theory test देने के लिए आप ready हो मानव? क्या Sir, आप I'll दे try पाओगे? to give it. Yes, sir. I'll give it. Just attempt it. और अगर नहीं Yeah. आता है तो हम So लोग when is the test? then it will be beta announced to you shortly. Just a second. Wait, I'll just confirm it with Manjot sir. Wait. Manjot sir. Manjot sir. आप हैं? Okay, I feel students he's in the recordings because he'll be making some videos or something like that, so he will be over there. But I feel कि this will be the end of the chapter, ठीक है? तो आज के लिए I can leave you over here, है ना? अब आपका टेस्ट लास्ट टाइम का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, some basic concepts of chemistry. अनिकेत आपने वो टेस्ट दिया था बेटा? Some basic concepts of chemistry. I think yes, Theory sir. test. वो कब हुआ था आपको याद है? Do you know the date and time or day? सर क्लास टाइम में ही हुआ था हमारा पिछली बार. Oh, is it? Okay, great then. तो फिर अगर कुछ आपको मैसेज नहीं आता है एवरीवन, तो आपके क्लास टाइम में ही नेक्स्ट वीक यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरी टेस्ट होगा. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव हर्ड मी. अगर कोई मैसेज नहीं आता है, मतलब आपके क्लास टाइम पे नेक्स्ट टाइम थर्सडे को इसी टाइम पे आपका टेस्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यस मानव, आस्क बेटा. Sir, how many chapters have we completed in this in this batch? Don't worry beta, this batch is the fresh started batch, so this is the second chapter only we are completing. हमने Okay. इसके आगे complete ही नहीं किया है. बाकी Okay. सारे batches में 5-6 chapter. You wanted to ask something बेटा? पूछो. Yes Shikhar, you wanted to ask something? सब वो गलती से type हो गया. Okay, great. So, guys, shall I end the lecture for today over here? Is it okay? आपको कोई भी doubt नहीं है, right, on the second chapter thing? Clear है? Give me a thumbs up if you can. If everyone is okay with me. Sure. चलो, great then. See you next week, all of you. Bye bye. Take care. हाँ शिखर, you have doubt? बोलो. Yes, शिखर. बोलो. वो एक्चुअली मैं आपको चेक करने के लिए कर रहा था. आई वाज टेलिंग कि मेरा एक्चुअली चैप्टर 1 में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा वीक है, सो वो कब बैकअप किया होगा. Definitely we will try and do this before your examinations, Shikhar. ठीक है? I'll get back to you. Don't worry. ठीक है? ओके, थैंक यू. Yeah, sure. चल. Bye bye all of you. Take care.